I request Amijan to and Fire Sharif sir to please sit on the stage. Our invitees Iran sir and Fire Sharif sir to sit on the stage. I request Hazrats also to please take their seats. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "A leader is one who follows what is right." I request Miran sir to please sit on stage. Welcome on the stage. The Investiture Ceremony is a platform to showcase the leadership skills, abilities of our students, and the most prestigious ceremony in the schedule of school events. I request Muhammad Saifullah to recite Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal muttaqina fi dhilalin وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Jazakallah khair. It was a pleasure hearing you. Khalilur Rahman will present before you a lovely naat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। खैब
मुबारक हो। तुमने रहमते हक से नूर हक का पाया है। तुमने रहमते हक से नूर हक का पाया है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। थी निदा शबे असरा उदनु मिन्निये महबूब। थी निदा शबे असरा उदनु मिन्निये महबूब। बेधड़क चले आओ हमने ही बुलाया है। बेधड़क चले आओ हमने ही बुलाया है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। ए नबी मैं तुम पर क्यों न जानो दिल फिदा कर दूं। ए नबी मैं तुम पर क्यों न जानो दिल फिदा कर दूं। हमने आपको पाकर तो खुदा को पाया है। हमने आपको पाकर तो खुदा को पाया है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। अस्सलाम वालेकुम। Jazakallah khair. Very heartwarming. Student only, please march ahead.
I request Vasanta ma'am to honor Ammi Jan, that is Fayaz sir's mother, Miran sir and Fayaz sir in honor. I request Miran sir to honor Fayaz sir. I now request Muhammad Harun to present the welcome speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, I, Muhammad Harun Ahmed, welcome one and all present here for the celebration of Investiture Ceremony for the academic year 2024-25. Today is all about celebrating those who have managed to charm and impress and make their way into the positions of power. So let's give it up for our newly minted student council, because someone has to keep this ship from sinking, right? It's an honor and privilege to have the most magnificent and knowledgeable person with us. Yes, it is none other than our CEO, Mr. Fayaz Sharif sir. We welcome before our faculty comprising of teachers, coordinators, headed by our admin officers and headmistress, and also welcome the parents of our elected representatives as special duties. Thank you. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Without an atom of doubt, it is art for the CEO, Mr. Fayaz Sharif sir. His undisputed commitment to education profound the belief in the transformative power of knowledge. Deep-rooted religious values laid the groundwork for what our school stands for and has influenced others to follow the footsteps. We now have 18 Wisdom International schools all over India. He is the catalyst for the school community. Under his leadership, our school has made strides in the field of education, from his humble beginning to its current stature. Thank you. I request Fayaz Sharif sir to do the honor of badging the student council. School captain Muhammad Hashim Makki, son of Mr. Fayaz Sharif sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. According to the schedule, I was supposed to badge the school captain and vice captain, and we have proper schedule. Who's going to badge home? But since all of a sudden my mother is here, and when I told her that Hashim is the school captain and today is his program, she said, I will come, I want to see. So that's the reason she's here. So I feel that since my mother is here, let my mother badge Hashim. She's come to see her grandson's program, and he also will be blessed with her badging. So let my mother do it. I request everyone to do the honor of badging. Yes, sir. Okay.
Barakallahu. School Vice Captain Muhammad Abdullah, son of Mr. Jalal. I now request Miran sir to do the honor of badging. Sports Captain Muhammad Saad Khan, son of Mr. Ishtiaq. Sports Vice Captain Muhammad Rehan, son of Mr. Yusuf Yasmin. Who has to batch? Miran, sir. I now request Fakhruddin Hazrat to do the badging. Abu Bakr House Captain Muhammad Alam, son of Mr. Yasmin Pasha. I request Fakhruddin Hazrat to do the badging. Abu Bakr House Vice Captain Syed Ismail, son of Mr. Syed Awad. I request Nasirullah Hazrat to do the badging. Umar House Captain S.M. Ahmad Palo, son of Mr. Syed Umar House Vice Captain Muhammad Muaz, son of Mr. A. Mansoor. I request Mayor sir to do the honor of batting. Usman House Captain Rafan Abdul Rahim, son of Mr. Basim Ur Rahman. Usman House Vice Captain Muhammad Shayan S, son of Mr. Salim Pasha A. Ali House Captain Abdul Rahman, son of Muhammad Iqbal. Ali House Vice Captain Muhammad Sulaiman Bhai, son of Mr. Y. Yusuf Rahman. Campus Prefects.
Mr. Rahmatullah Beg. I request Rahmatullah sir to do the honor of pledging. Prefect Haja Pasha, son of Mr. Vikram Pasha. Prefect Tipu Muzakir, son of Mr. Campus Proctors. Proctor Sahil Pasha, son of Mr. Hasib Pasha. I request Zia sir to do the honor of pledging. Request Rahmatullah sir to do the honor of pledging. Dr. Rahul Ahmad Khan. Jazakallah khair. It's time for our new school captain Muhammad Hashim Makki to address everyone here with his views. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students, teachers, and honored guests. First thing first, can we take a moment to appreciate how amazing everyone is today? Seriously, give yourselves a round of applause. Standing here as your school captain, I feel a mix of excitement and pride. Not just because I get to wear this fancy badge, though it does look pretty cool, but because I have the honor of leading such an incredible group of students. This year, we are not just going to go through the emotions, we are going to set the bar high and then leap over it. We are going to make waves, break molds, and set trends. We are going to be the students that everyone talks for all the right reasons. To my fellow students, this is our year to shine. Whether you are acing exams, dominating your sports field, or just being your awesome self, let's do it with flair. Let's be bold in our actions, brave in our decisions, and unstoppable in our pursuits. To our amazing teachers, thank you for your guidance, patience, and for putting up with our shenanigans. We promise to make you proud. Anyway, let's remember that being a leader isn't just about making speeches, giving orders. It's about setting an example for others, lifting others up, and making a difference. It's about turning challenges into opportunities and making every day count. So let's get out there and make this year legendary. Let's be the best version of ourselves, support each other, and leave a legacy that future students will look up to. Here's to an unforgettable year with full of achievements, growth, and a whole lot of sass. Thank you. Jazakallah khair. I now request our new school captain Muhammad Saad Khan to address everyone here with his sports captain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, esteemed faculty and my fellow students, I stand before you today with a heart full of gratitude and excitement. It is truly an honor to be given the opportunity to address you as a sports captain. I want to express my
I want to express my appreciation to all those who have supported me and believed in my abilities. I believe I believe in the power of teamwork and perseverance. I promise to be approachable and open to feedback. Your ideas and suggestions are invaluable in shaping our sports program. Let's embrace the spirit of sportsmanship, unity, and determination as we embark on this journey together. Thank you. Jazakallah khair. We all extend our best of luck and hope to have an eventful year ahead. We request student council to stand and raise hand for both takes. Girls are settled over there. Somebody inform me so that I can start the order. Are the other girls settled down there? No. Put on your hands, girls and boys. Put on your hands. Yeah, before you are going to take the oath. See, I want you to be conscious about what you are going to repeat. It is just not a formality. It is just not a formality. When we are administering oath, it's a very, very pious, religious, it has got a lot of sanctity in it. It is just not that I say something and you say something just for an event today. No. This is for your life. Okay? And today is such an important day for you. Once I administer the oath, that means to say that you are really, keeping Allah as witness. Because it says very clearly, in the name of Allah, the beneficent, the merciful. That is enough for us. It should not just be for the sake of formality. Other words, sure, you will say this consciously. What about the girls? You will say this consciously. Yes, sir.
Yes. In the name of Allah, the beneficent, the merciful, I thank Allah for the favors He has bestowed upon me. I resolve that I shall discharge my duties with utmost sincerity. I shall work hard with an upright character. I shall work hard with an upright character so as to lead my fellow schoolmates towards the same excellence in character and performance. O Allah, help me take my school towards a glorious repute. May Allah accept us all for the service of Deen. Ameen. Jazakallah khair everyone. With great pleasure, request CEO Mr. Fayaz Sharif sir, our leader and captain of the clan, to enlighten us with thought-provoking words of wisdom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले अल्लाह का बड़ा एहसान है, फजल है, करम है कि अल्लाह ने हमको यहाँ पर जमा होने की तौफीक अता फरमाई। और उसके बाद मेरे वालिदा यहाँ मौजूद है। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए मेरे लिए। मैं जब उनसे कहा कि उनके पोतरे का प्रोग्राम है तो बोले कि मैं भी चलती हूँ लोग, जबकि क्लास से बैठना नहीं होता, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं आऊँगी और आज उनकी दुआओं के साथ मैं शुरू करता हूँ। अभी जाकर पूछा कि बैठ सकते हैं कि नहीं, कैसे कहा था बैठूंगी मैं, देखिए हमने आज इन्विस्टिचर सेरेमनी रखा, जो स्कूल कैप्टन है, स्पोर्ट्स कैप्टन है, वाइस कैप्टन है वगैरह जो भी आपने देखा, उसके साथ साथ आज का हफ्ते का फायदा उठाकर हमने स्कूल की छुट्टी कर दी ताकि स्कूल से प्रोग्राम हो जाए, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैनर देखेंगे, पहले एक बैनर था इन्विस्टिचर सेरेमनी का, अभी उसको हटा दिया है, नीचे उसका दूसरा बैनर, उसको समझिए। वो बैनर के में लिखा है shaping tomorrow together, shaping
टुमारो टुगेदर, कल के लिए हम सब मिलकर कल का मुस्तकबिल बनाएंगे। यानी मतलब क्या, मुस्तकबिल बनाने हमारे हाथ में नहीं, अल्लाह का फैसला है। बस बोलने का मतलब ये है कि दुनिया में जो फसाद हो रहे हैं, दुनिया में जो खुराफात हो रहे हैं, दुनिया की जो हमारे घरों के बाहर, स्कूल के बाहर जो ताकतें हमारे बच्चों पर हमला कर रहे हैं, जो बुरा हमला कर रहे हैं, रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का कुछ मुज़ाकरा करेंगे, कुछ फिक्र करेंगे। तो हमने दावत दी, आपने आए, जज़ाकल्लाह खैर कहता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे तो नहीं आए, जो भी आए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के बच्चों को एक रोल मॉडल बनाए, आप लोगों के बच्चों को उम्मत का सरमाया बनाए। माँ बाप जब तक बच्चों की फिक्र नहीं करते, आज बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, माँ बाप भी, तमाम के सामने कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा, शुरुआत में जो बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करते हैं वो दुनिया में भी नाकाम होते हैं, आखिरत में भी नाकाम होते हैं। ये बच्चे तो और से सुनो, नाफरमानी का जो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। उस गुनाह से बहुत डर। आपकी कामयाबी माँ बाप की दुआओं से है, टीचर्स की दुआओं से है। बच्चे थोड़ा बड़े होने के बाद, बॉयज हो गर्ल्स हो, आजकल माँ बाप को कहते हैं कि आप नहीं जानते, चुप रहो, हम जानते हैं। ये अक्सर घरों में चलता है। मैं आपको बच्चों को दरखास्त भी करना चाहता हूँ और डराना भी चाहता हूँ, इन चीज़ों से परहेज करो। माँ बाप की बात सुनो, कुछ चीज़ें अपने दिलों में लिख लो, सील लगा लो दिलों। क्या बोल रहे हैं? माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में तुम्हारे रहबर, अच्छे रहबर दुनिया में कोई भी नहीं। ये बात याद है। औलिया अल्लाह की दुआ बाद में कबूल होती है, माँ बाप की दुआ पहले कबूल होती है, वो भी याद है। कामयाब होना चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लो, टीचर्स के दुआएं लो, माँ बाप की बात सुनो। अगरचे कभी कभार पसंद नहीं आता, आपको नहीं समझ में आता। पसंद क्यों नहीं आता? इसलिए कि आपको समझ में नहीं आता। आपको दवाई, एक कड़वी दवा देते हैं डॉक्टर, आपको पीना पसंद नहीं आता, कड़वी है, लेकिन डॉक्टर को मालूम है कड़वी है, जो भी है वो पीने से आपको सेहत अच्छी हो जाएगी। पसंद तो नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टर की बात सुनना पड़ेगा। इसी तरीके से माँ बाप की कुछ बातें समझ में नहीं आती, आपको पसंद नहीं आती, लेकिन याद रखो उन बातों से आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। कई लोग इस दुनिया में हैं जो माँ बाप की नाफरमानी करें। मेरे क्लासमेट्स हैं, जो माँ बाप की दुआएं नहीं है, बहुत अच्छा डिग्रियां हासिल की, बड़े डिग्रियां हासिल की, लेकिन माँ बाप की दुआ नहीं थी। उस डिग्रियों को हासिल करने के बाद उसी डिग्री में जिल्लत में नहीं उठता। क्या समझते हो? डिग्री मिल गई तो हम कामयाब हैं? हरगिज़ नहीं। डिग्री से कामयाबी नहीं है। डिग्री एक टूल है, एक सपोर्ट है, एक प्रोटोकॉल है दुनिया में कैटेगराइज करने के लिए। उस डिग्रियों के साथ अगर दुआएं नहीं है
तो उसी डिग्री पे गर्व हो जाओगे, जलील हो जाओगे। मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूँ, मेरे क्लासमेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़े हैं, लेकिन अजीब अंदाज से अल्लाह ने उनको जलील किया। आज वो मेरे पास आते हैं, यूके से डॉक्टर, यूके जाकर पैसे कमाना वगैरह, अच्छा खासा शोहरत मिली। मुझे अच्छा याद है, स्कूल में आकर उनके दादा रोते थे, दादा, बाप में दादा हमारे से बोलते थे, भाई थोड़ा आपके क्लासमेट से कहो। बाप आते थे, इतना इंटेलिजेंट था बच्चा, वो स्टूडेंट हो मेरा क्लास में। चलते चलते अच्छा बड़ा डॉक्टर हुआ, MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यूके गया कमाने के लिए। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, लंबी कहानी है। इतना तो मैं कहूँगा कि इतना ऐसे अजीब अंदाज से वो जलील हो गया, यूके छोड़कर वापस लौटा और फिर मेरे पास आकर कुछ मदद मांगने लगा। वहाँ तक उसकी हालत है। मैं जब बैकग्राउंड में सोचा तो मैं सीधा देखा कि वो माँ बाप की दुआ नहीं गया। ऐसे कई हैं, आपके खानदानों में भी हैं, आपके घराने में भी है, खानदान में भी है। आप देखो, जिन्होंने दुआएं लिए, जिन्होंने सच्चाई पर काम करे, यानी अल्लाह को सामने रखकर अपने अपनी नमाजों के साथ जो लोग काम किए, आज लोग शाइनिंग स्टार्स हैं। माल याद रखो, माल कामयाबी की दलील हरगिज नहीं, माल कामयाबी की दलील हरगिज नहीं। और जिसके पास माल नहीं है वो नाकामी की दलील नहीं है। आज दुनिया का रुख बदल गया है, जिसके पास माल है वो आज उनकी इज्जत है, जिसके पास माल नहीं है उनकी इज्जत नहीं है। लोग समझते हैं वैसे, अल्लाह कुछ और कहता है, अल्लाह कुछ और कहता है। अल्लाह कहता है जिसके अंदर तकवा है उसका मकाम, माल का दखल है ही नहीं। अच्छे कार रखना, अच्छे मोबाइल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, लोगों में दिखाना, एक लेवल से फिरना, लोग समझते हैं कि वो इज्जत है। हर किसी इज्जत नहीं। इज्जत, कामयाबी खुद के पर्सनालिटी में है, खुद के कैरेक्टर में है, खुद के तकवे में है। हमारा आपस में सुलूक, माँ बाप के साथ सुलूक, रिश्तेदारों के साथ सुलूक, भाइयों के साथ सुलूक, बहनों के साथ सुलूक, अच्छा सुलूक। दिस इज कामयाबी। तो बिगनिंग में मैं सोचा आपसे कुछ कहूँ स्टूडेंट से। जनरली बोलता हूँ कि देखो, माँ बाप भी हैं, आज हमें असल में, हकीकत में, मैं जनरली बोल रहा हूँ, मेरा उठना बैठना फिरना काफी लेवल का है। मैं देखता हूँ तो जाता हूँ, परेशानियाँ, माँ बाप की परेशानियाँ, कभी माँ की परेशानी, कभी बाप की परेशानी, यानी बच्चों को इतना मेहनत करने के बाद, बच्चों पर इतना मेहनत करने के बाद, देखो आप लोग माँ बाप बैठे हैं, आपकी क्या मेहनत है, माँ की क्या मेहनत है, ये आप लोग समझो, कह रहा हूँ, आप लोग सुनो, गौर से सुनो, दो कानों से गौर से सुनो, कॉन्शियसली सुनो, एहसास के साथ सुनो। माँ की क्या कुर्बानी। एक तो माँ अपने शोहर को सपोर्ट करती है, क्या लेवल तक सपोर्ट करती है, उसकी देखभाल करना, उसके आराम का ख्याल रखना, उसकी हर चीज का माँ ख्याल रखती है। और बीवी एक शौहर का ख्याल रखती है, उसके साथ साथ अपने बच्चों की बच्चियों का ख्याल रखते हैं।
सुबह उठना, उनका नाश्ते का करना, उनको कुछ दूध वगैरह जो भी है वो खिलाकर स्कूल को भेजना, वक्त से भेजना, कपड़े 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 धोना, इस्त्री डालना, उनकी सब चीज़ें रेडी करना, उनका कुछ तबीयत में फर्क पड़ा तो उसका देखभाल करना। हमें उनकी कुर्बानियाँ गिना तो मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। माँ की जो कुर्बानी है, बीवी की जो कुर्बानी है, हमें नहीं बयान कर सकते। बाप क्या करते हैं? मैं कई बार अपने 10th स्टैंडर्ड की गर्ल्स एंड बॉयज को बोला, 9th और 10th की गर्ल्स एंड बॉयज को बोला, जो माँ बाप हैं उनके जो परेशानियां हैं 25% आपको दिखते हैं, 75% वो छुपा देते हैं, अपने दिल में रख लेते हैं। मेरे बच्चे को इफेक्ट नहीं होना, मेरी बच्ची को इफेक्ट नहीं होना। सुबह ज़्यादा शाम तक पैसा कमाते हैं आपकी फीस भरने के लिए, आपको हलाल खाना बनाने के लिए, बीवी के जरूरत है पूरे करने के लिए। उनके क्या क्या कुर्बानियां हैं आप नहीं जानते। कुछ जानते हैं, छोटा मोटा, बड़ा हिस्सा वो नहीं बताते आप। इतनी कुर्बानी देने के बाद, माँ की ऐसी कुर्बानी, बाप की ऐसी कुर्बानी, इतनी कुर्बानी देने के बाद आज 9th और 10th में आप लोग बैठे हैं, बचपन से आपने पढ़ाए हैं। उस बचपन से, पैदाइश के बाद से लेकर आज तक जो जो परेशानियां उन्होंने उठाए हैं, कई हालात उन पर भी आए आपके जरिए से, कभी पढ़ाई का मौका, कभी सेहत का मौका, नहीं मालूम क्या क्या, उसको बर्दाश्त करते हुए, सब्र करते हुए, धूप पीते पीते आप लोगों को इतनी दूर तक लेकर आए। अपने अपने दिलों में, गिरेबान में झांक कर पूछो, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, पूछो कि आपका सलूक अपने माँ बाप के साथ क्या है। कितने फरमा बरदार है आप माँ बाप, बच्चे और बच्चियां दोनों को। कितने फरमा बरदार, उनकी बात कौन सी हद तक आप सुनते हैं, उनके पीठ पीछे चोरी चोरी क्या क्या काम करते हैं। ईमानदारी से पूछो अपने आप, इतनी कुर्बानी के बाद आपका रिवॉर्ड क्या है? क्यों करते हो चोरी से पीछे पीछे कुछ काम? मोबाइल तो हाथ को मिल गया है, मोबाइल में चैटिंग करना, बाप तो जाएंगे कमाने के लिए। बहुत सारे माँ को नहीं मालूम होता क्या हो रहा है फोन में। आप जाकर बोलते हैं कि, माँ बाप को बोलते हैं कि स्कूल से होमवर्क आया है, हमको इंटरनेट जाना है, हमको नेट में जाना है, हमें ऑनलाइन जाना है। तो झूठ है। कौन सा भी ऐसा काम हम लोग नहीं देते आपको जिससे, यानी मोबाइल, जिस काम के लिए मोबाइल की जरूरत है। माँ बाप की सुन लीजिए, अगर आपके बच्चे और बच्चे आकर कहेंगे मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट करना है, मत दीजिए आप, मत दीजिए। हमें कभी वो प्रोजेक्ट देते नहीं जिससे मोबाइल की जरूरत है, मत दीजिए आपको। आप हेल्पडेस्क को फोन कीजिए, सबके पास हेल्पडेस्क का नंबर है। वेलफेयर ऑफिसर बैठे हैं, वो रजिस्टर करते हैं, बाकायदा इमीडिएटली अटेंड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। एक बार थोड़ा गौर से माँ बाप का उस पर गौर कीजिए कि हम लोग फोन का इस्तेमाल से बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। और बच्चों को माँ बाप अपना दोस्त बनाओ, अपना दोस्त बनाओ। आजकल के माहौल ऐसे हो गए हैं कि बच्चे अपने माँ बाप से कुछ कहने में डरते हैं। हमारा और आपका जमाना कुछ और था, हालात कुछ और थे। हमें मार भी खाए,
कभी कभार हमारा खाना 1 बजे 2 बजे मिलने का 3 बजे मिलता और अभी सामने बैठे हैं। क्या में क्या कहते हैं लेट देर खाना हमको क्या कहते हैं? हाँ, पढ़े नहीं तो ले देते हैं जो ये हमारा ऐसा गुजरा जमाना हमारे ऊपर और हमें उसको मानते नहीं। हालात भी वैसे थे। ऐसा जो फसाद है बाहर एनवायरमेंट में वैसा नहीं था। एक तो सबसे पहले समझो बच्चे मासूम हैं। माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चे मासूम हैं। मेरा मतलब क्या मासूम का मतलब क्या? जैसे बच्चे हम थे वैसे बच्चे वो भी हैं। जैसे हम थे वैसे बच्चे वो भी हैं। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि हमारे पास ऐसे कुछ वसाइल नहीं थे, ऐसी इतनी हद तक बुराई नहीं थी, ऐसी हद तक खुराफात नहीं थे, ऐसा एक आजाद माहौल नहीं था जितना आज है। हम लोगों को बुराई अगर देखना तो ढूंढ लेकर जाना था कहीं दूर तक नहीं थी वो चीज। आज घर के बाहर निकले तो बुराई है, घर के अंदर है तो फोन पर बुराई है। तो अगर हम सब मिलकर अगर कल हमारे बच्चों को रास्ते से भटकने से बचाना है, ये मासूम है। ऐसी जबरदस्त बुराई का माहौल उनको खींच रहे हैं, ऐसा खींच रहे हैं बाहर। तो क्या होगा? सारी दुनिया का यह हाल है। ऐसे माहौल में हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को रोज बात करें। जब स्कूल से वापस लौटोगे बच्चों को बात कीजिए, वक्त दीजिए बच्चों को, वक्त दीजिए बच्चों को, बिठाकर बात किया स्कूल में क्या हो। अगर हमारे पास वक्त नहीं है बच्चों के लिए तो समझो हम नाकाम हो जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे। बच्चों के लिए जो वक्त नहीं देते वो नाकाम हो जाएगा। क्यों? बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है बात, उसे झेलने की ताकत बच्चों और बच्चियों को नहीं है। याद रखो, हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर वो बाहर की जो मुसीबत है उसे संभालने के लिए, उसको झेलने के लिए वो ताकत नहीं है। उनके अंदर ताकत कम है, बुराई का जोर ज्यादा है। उनके अंदर ताकत कम है, खुराफात का जोर ज्यादा है। तो ऐसे माहौल में उनको सपोर्ट कौन करना? माँ बाप करना। माँ बाप सपोर्ट करने के लिए पहले उनको अपना दोस्त बनाना, अपना दोस्त बनाना, अपने लिमिट्स पर रहकर अपना दोस्त बनाना। बच्चियों को भी अपने माँ बाप अपने दोस्त बनाना, बच्चों को भी माँ बाप अपने दोस्त बनाना। ऐसा भी देखा जाता है कि नहीं, बच्चियों के दोस्त तो माँ होती है, बाप नहीं होता। कई घरों में माँ तो दोस्त हो जाती है, बाप नहीं। ऐसा नहीं है। माँ बाप का दोनों का बड़ा रोल है, बिल्कुल बड़ा रोल है। तो ये फिक्र करेंगे तो नहीं होगा। एक जमाना था हमारे बचपन में, कोई एक भी अगर फिक्र कर लेते तो काफी था। क्यों? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी समझा दे, आपको भी समझा दे। हमारे जमाने में ये चीजें नहीं थी जो आज है। मिसाल के तौर पर हमारे वास्ते हमारे अपनी मेहनत करे, कौन सी हद तक मेहनत करे वो किताब है, वक्त भी नहीं है। हमारे मालिक साहब सुबह उठते चले आते। कभी बार ऐसा जमाना गुजरता, हमें उठने से पहले चले आते, हमें सोने के बाद वापस जाते। ये था हमारे वालिद साहब का। लेकिन एक काम करते हो, बराबर एक काम करते। जब एग्जाम करीब आते तो उनके काम में उन्हें क्या एडजस्टमेंट करते नहीं मालूम, बराबर हमारे साथ बैठते, बराबर बैठते। उनको हिंदी आता नहीं था, हिंदी पढ़ेगी।
में उनको बोलते हैं मेरी हिंदी से ऐसा, लेकिन करते काम। लेकिन 90% 80% सपोर्ट होना भैया हमारे पढ़ाई के ताल्लुक से हमारा अम्मी का। हमारा अम्मी के पास नोट्स होते, क्या नोट्स होते, उर्दू में इंग्लिश में लिख लेते हैं, उर्दू में इंग्लिश यानी उर्दू ट्रांसलिटरेशन से समझो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, उन उर्दू में लिख लेते हैं व्हाट इज योर नेम। हमारे पूरे नोट्स की कॉपी उनके पास होती, हमारे से पूछ कर लिख लेते। और उस जमाने में तो रोट लर्निंग था, यानी याद कर लो, रटो 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 फिर जाकर लिखो, ये सब ये मशहूर था उस जमाने में। तो हम लोग रट कर रखते थे, अभी हम क्वेश्चन पूछते थे, वो उर्दू पढ़ते थे, हमको इंग्लिश में आता। वो लेवल की मेहनत बन जाते, अल्लाह का फजल हम लोग पढ़ लें। लेकिन पढ़ाई के अलावा जो तरबियत का जो मॉरल फैब्रिक का जो मेहनत होना था, एक नॉर्मल मेहनत करे वो काफ़ी थी हमारे लिए। क्यों? ऐसे खुराफात में थे, ऐसी ज़बरदस्त बुराई, बेहयाई, फितना, फसाद नहीं था उस जमाने में। तो वो जो नॉर्मल मेहनत करे वो काफ़ी थी उस जमाने के हिसाब से, हालात के एतबार से वो ठीक था। लेकिन आजकल के हालात में हमारी जो बच्चों की तरफ तवज्जो है, बच्चों से बातचीत है, बच्चों को जो समझाना है, वो कई गुना ज्यादा होना चाहिए। आज तक अगर नहीं करते हैं तो आज की बात करिए। बच्चे जब स्कूल को जाते हैं तो अफसोस है, मैं सुना भी हूँ, माँ बाप सोते रहते हैं, जो बड़ी बहन होती है, बड़ी बेटी होती है, उन्होंने अपना टिफिन वगैरह अब तक खुद अपने आप होकर स्कूल आ जाते हैं। कई हालात से हम गुजरते हैं, बच्चे और बच्चियाँ को फेस करते हैं। ऐसे बच्चियों को हम टारगेट भी करे हैं, लिस्ट भी बनाए हैं, बाकायदा लिस्ट बनाए हैं, और उनका हम बराबर टेक केयर होते हैं। कभी नाश्ता वगैरह दे दिए, कभी खाना होटल से नहीं, घर से बनाकर खाना लाकर देंगे ऐसे बच्चों। बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे जब जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, मैं कहता हूँ आजकल के बच्चों को अल्लाह हाफिज़ जितना तो है करेंगे, बच्चे और बच्चियाँ अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। मैं बच्चों से बोलता हूँ, इस हल से अल्लाह हाफिज़ नहीं, मुसाफा कीजिए। ये मुहारा कीजिए, सीने से सीना लगा कर मुसाफा कीजिए। वो लेवल की जरूरत है ना, बाकायदा वो लेवल की जरूरत है सबको करना। मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें। मैं जब मेरा बच्चा स्कूल को आता है, मैं बाकायदा कभी मुआनफा कभी मुसाफा, जब तक नहीं करता तब तक स्कूल नहीं भेजता। मैं तो करता हूँ अल्लाह करने का आगे करता हूँ। मैं समझ गया कि मेरे बच्चे पर अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा, वो सिस्टम इख्तियार नहीं करूँगा, अल्लाह ना करे बच्चा भटक जाएगा। हमारी दौलत तो हमारे बच्चे हैं ना, हमारा माल तो हमारी दौलत नहीं है। हमारा माल तो यहीं छोड़कर जाएंगे, हमारे बच्चों को छोड़कर जाएंगे, हमारे बच्चे उम्मत का सरमाया बनेंगे, वही दौलत हमारे खबर में भी काम आएगी और हमारे आखिरत में काम आएगी। असल दौलत वो है। माल का दखल कुछ दुनिया में जीने के लिए, वो भी आला दर्जा जीने की जरूरत नहीं है। माल जरूरत के मुताबिक हमको चाहिए और वो माल यहाँ पर छोड़कर जाना है। बच्चे अगर हमारे अच्छे हो गए, बच्चे अगर हमारी हिफाजत में हो गए, तो तब जाकर हम दुनिया से चले जाएंगे, बच्चे रह जाएंगे और वो बच्चे हमारे आखिरत का सामान बनेंगे, हमारी जन्नत में जाने का सबब बनेंगे। तो माँ बाप से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप एकदम क्लोज हो जाए बच्चों,
कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चों को अक्ल नहीं है, बच्चों को उनके मुताबिक उनकी समझ है। कोई उनका दोस्त कुछ बोल कर देता है, उनका दोस्त बोलता है, कुछ बोल कर देता है, चलो हम जाएंगे, एक पार्टी करेंगे। रास्ते में होटल्स हैं आजकल, पहले बात करते, बच्चे बात करते हैं, स्कूल के बाहर निकलते हैं, वहाँ पे होटल में गए, वहाँ पे देख गए, बैठे, कुछ खाए पिए। उनके खाने पीने में हमारा एतराज नहीं है। मेरे बेटे को मैं भी बोलता हूँ, ऑन द फेस बोलता हूँ, तुम्हारे खाने पीने से मुझे एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स कौन, मैं वो जानना चाहता हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स कौन? एक बार शायद 1 महीना पहले कुछ 2-3 दोस्त थे, मौलिक के बाद कुछ कहीं जाना चाह रहे थे। मैं तो परमिशन दिया, लेकिन मैं पहुंच गया हूँ, मैं खुद पहुंच गया। पहुंच कर बच्चों से बात की, देखो मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, मेरे बच्चे को भरोसा है, तुम्हारे को भरोसा है, कोई ऐसा गलत काम मत करो। यही आपको बोलने के लिए आया, पहुंच कर बोल कर वापस लौट गया। और कोई बच्चा या बच्ची, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको कुछ करना है, माँ बाप की इजाजत के द्वारा हरगिज नहीं करें। याद रखो एक बात, हरगिज नहीं करें। लड़के लड़कियां बात करते हैं, कुछ लड़कियां किसी घर में जमा हो जाते हैं, कहीं जाकर वो बेकरी में खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्या जो भी करना है, माँ बाप की इजाजत के बगैर मत करो। तुमने नहीं समझ में आता कि क्या होगा, आएगा होगा, किसके घर का माहौल कैसा है। 150 बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, बॉयज एंड गर्ल्स। 150 बच्चों के घर का 150 अलग माहौल है, अलग अलग माहौल है। You will not know what happened to you. Anything, कुछ भी है, माँ बाप से पूछो, माँ बाप से बात करो, बगैर पूछे कुछ मत करो, कोई चीज छुपा कर मत करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वालिदैन की जिम्मेदारी बड़े अदब के साथ कहता हूँ कि उनसे कम्युनिकेशन करो, उनसे बात करो। हमेशा एक माइंड रखो कि ये बच्चे मासूम है, ये दिल में हमारा है। कोई बच्चा या बच्ची यहाँ पर खराब नहीं है। आपके बच्चे खराब कैसे हो सकते हैं? मेरा बच्चा खराब कैसे हो सकता है? किसी के बच्चे खराब नहीं है। माँ बाप अच्छे लोग हैं और उनके बच्चे अच्छे रहेंगे, जाहिर बात है। हम कैसा समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची खराब है? थोड़ा फोन से परहेज कीजिए, कोई फोन पर बात कर रहे हैं प्लीज, तो इम्पोर्टेंट बात चल रही है, उसका उसकी कदर कीजिए। हमको डिस्टर्ब होता है, अपने बाजू बैठे डिस्टर्ब होता है, माफी के साथ कह रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था कि बच्चे, आप अच्छे माँ बाप हैं, आपके बच्चे खराब कैसा हो सकते हैं? बोलिए। ये नजरिया हमारे माँ बाप का होना चाहिए। मैं अच्छा हूँ, मेरी बीवी अच्छी है, मैं अच्छी हूँ, मेरा शौहर अच्छा है, तो मेरे बच्चे कैसा खराब? हरगिज हमारे बच्चे खराब नहीं, हमारे बच्चे सब अच्छे हैं। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? उनकी रहबरी नहीं हो रही, उनकी रहबरी नहीं हो रही। जब कुछ होता है तो उनको करेक्शन करना। करेक्शन किस अंदाज से करना? अक्ल वाले समझ कर नहीं करना, कम अक्ल समझ कर करना। हमने जितनी अक्ल होती तो हमारे बच्चों को उतनी अक्ल नहीं है। अभी आई वांट ऑल ऑफ यू हियर, ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज, तुम्हारे माँ बाप जितनी अक्ल है, जितनी समझ आपके अंदर है, जिसके अंदर है हाथ उठाओ।
तुम्हारे माँ बाप के अंदर जो समझ है, जो अक्ल है, आपके अंदर है? क्या बोलो? उनके अंदर नहीं है। चलो, जब आपके अंदर उतनी अक्ल नहीं है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? अक्ल सीखना। माशाअल्लाह, वेरी गुड। मैं वांटेडली उर्दू में बात कर रहा हूँ, आपसे उर्दू में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इसलिए कि उर्दू में जितनी बात समझ में आती है, जब दिल पर असर होता है, वो इंग्लिश में नहीं होता। और कभी भी माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, इंग्लिश जब बात करते हैं तो चिट्ठी भेजते हैं कि नहीं आप उर्दू में बात करो। बहरहाल आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये था मेरा कि माँ बाप की जो समझ है, अक्ल है, उतनी हमारे अंदर है क्या? नहीं, आप बोले नहीं है, बराबर? सही बात। उसके बाद मेरा सवाल था तो उसका मतलब क्या करना, तो तुम्हें क्या बोले? अक्ल सीखना, बराबर? वेरी गुड। अक्ल सीखने के लिए सबसे पहली बात, सबसे पहली सीढ़ी क्या? किसकी बात सुनना? बात समझ आ रही? ये अगर जिंदगी में हमारा उसूल रहा ना, आप देखो आप काम जाएंगे। माँ बाप की इज्जत से मत खेलो, माँ बाप की इज्जत से हरगिज मत खेलो। सारी जिंदगी लुटाते हैं आपके लिए। अब आप लोग बड़े हो गए, 14-15 साल हो गए, आपको नहीं मालूम कि आप 4 साल के जब थे तो आपके साथ क्या हुआ, आप 3 साल के जब थे तो आपके साथ क्या परेशानी आई, क्या खड़े, कितने रातें नहीं सोए, तुमको क्या मालूम? तुमको क्या मालूम? उनकी इज्जत के साथ मत खेलो, उनको इज्जत देने की फिक्र करो, उनकी कुर्बानी को समझो। और माँ बाप की जिम्मेदारी है, इंक्लूडिंग मी, हमें बच्चों से कम्युनिकेट करना, बच्चों से बात करना, अच्छे अदब के साथ बच्चों को बोलना। क्यों? हमेशा समझो कि वो कम अक्ल है। माँ बाप समझना कि बच्चे कम अक्ल हैं, उनको नहीं मालूम, अपनी समझ के मुताबिक कभी कोई बात कर देते हैं, कभी जोर से बात कर देते हैं, कभी गुस्सा कर लेते हैं। उनको गुस्सा करें, हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं। हमको थोड़ा संभालना है, सब्र करना है, संभाल कर कम्युनिकेट करना है। क्यों? बिकॉज दे आर इनोसेंट। वो जो बात कर लेकर हैं, क्या कोई चीज बाहर देखे हैं, उसी हिसाब से वो हमारे से आकर बात करते हैं। तो कभी कभार माँ बाप को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता है, आना भी चाहिए, लेकिन हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या? हमें संभल कर उनको समझाना, कम्युनिकेट करना, बात करना, हमेशा बात करना। जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो बॉन्डिंग रहेगा, बच्चों से। जब वो बॉन्डिंग हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, एतमाद का जो लेवल है बढ़ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस और एतमाद का लेवल बढ़ जाएगा, उसके बाद जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हमारा होगा, नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जब हमारा होगा, वो इतना जबरदस्त होगा कम्युनिकेशन कि वो हमारी लेवल करने लगेगी। ऐसा कई घरों में देखा हूं। कई बार घरों में मशवरे होते हैं कुछ काम करना, तो बच्चे बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, बड़े प्यारे मशवरे देते हैं, बड़े समझ के मशवरे देते हैं, समझदारी के मशवरे देते हैं। They are a part of us. वो एक हमारा हिस्सा है। आजकल फोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये बला में फंसे हैं पूरे बच्चे। तो बच्चों से बोलो, सुनो, आपके पास फोन है, आप इंस्टाग्राम में चैट करते हैं,
You are sure? अभी I told you, थोड़ी देर पहले मैं बोला, okay. I just not told you, कि बच्चे मासूम हैं, उनको समझ कम है, अक्ल कम है, तो उस कम अक्ली पर, उस कम समझ पर, उस मासूमियत में कभी फोन इस्तेमाल करते हैं। करना बुरा नहीं है, फोन के जरिए से हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, वेरी गुड। कभी पर कुछ गेम्स देख लिए, गेम्स खेल लिए, समथिंग कंस्ट्रक्टिव, नो प्रॉब्लम। That will lead to different routes. You need to be careful. माँ बाप एक टाइमिंग बनाई है, कुछ बच्चे फोन देखना चाहते हो, ठीक है, एक टाइमिंग बनाई है, उस टाइमिंग में दीजिए। मेरा बच्चा भी सुनता नहीं है, मैं बच्चे को टाइम बना कर देता हूँ। वो भी बच्चा है, बाकी जो बच्चे बैठे हैं वो भी बच्चा है। मैं प्रिंसिपल हुआ तो क्या होगा, CEO हुआ तो क्या होगा, मेरे डिग्री से वो बदल जाएगा? नहीं। जब उनके स्कूल में क्लास में बात करता हूँ, वो कहूँ बच्चे से तुम एंजॉय करो, यू डोंट थिंक यू आर द सन ऑफ द प्रिंसिपल। नो, घर में एक भी डिस्कशन नहीं करता उनके साथ। एक मतलब पूरे बच्चे मिलकर एक लेटर दिए बच्चे को जाकर अपने वालिद को दिए, बोला कर दिया मुझे। मैं वो लेटर लेके नेक्स्ट डे स्कूल को आया, और बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उन बच्चों को सब जोड़े और बोले आप हमारे बच्चे के जरिए से कुछ काम नहीं करा, वो आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, जैसा आप है वैसा है, मेरे वजह से कोई स्पेशल कैटेगरी में नहीं है बच्चा, आप जैसा है। तो इफ यू वांट समथिंग, हेल्प डेस्क में जाओ, जाकर रिक्वेस्ट रखो, अपने HM को बोलो, उसके बाद मैं हेल्प करूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे सब ऐसे हैं, कभी गुस्सा करते हैं, मेरा बच्चा भी गुस्सा करता है, क्या करना? उस वक्त में समझाना, उस वक्त में समझाना। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ से कन्फाइड करते हैं, कुछ जाकर अपनी माँ को बोलकर काम करवा लेते हैं, ऐसा होता है, isn't it? Yes or no? अब माँ कभी लाड़ प्यार ना कर बाप से छुपा कर काम करवा देती, वो काम माँ नहीं करना। आपसे कह रहा हूं, देखिए, माँ वो काम नहीं करना। You know why? I'll tell you why. That becomes the first step of doing things without the knowledge of the parents. कई माँ बाप आते हैं हमारे पास, वालिद साहब आते हैं, ऐसा ऐसा कुछ हुआ स्कूल में 2 महीने पहले, मुझे पता नहीं ना, मुझे कोई बोले नहीं ना। उनके घर वालों से पूछते हैं, क्या मैडम? नहीं सर, उस टाइम को हम नहीं बताए थे। ऐसा मत करो, मैं माँ को बोल रहा हूँ, अपने शोहरों को बताओ, वो अच्छी रहे बड़ी, दोस्ताना अंदाज से हर काम करो, बिल्कुल दोस्ताना अंदाज से हर काम करो। तो मैं जुमला ये बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चों को दोस्त बनाओ, बच्चों से कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, अगर वो गलत करते हैं बिठाकर उनको समझाओ, किसी की मदद की जरूरत है तो मदद ले लीजिए, किससे मदद लेना वो भी चॉइस करना, चॉइस करना, किसको जाओ बताना। अजीब हाल है आज। मैं कोई भी चीज़ आपके सामने स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मेरी फैमिली यहाँ पर है, मेरे घर वाले यहाँ पर, 2-4 दिन पहले
मुझे कोई फोन किया और बोले किस्सा सुना अपने खुद की बीवी का मशवरा करेगा शायद भाई मैं क्या करूँ, मेरी बीवी मेरे बच्चों की बुराई अपनी बहन से करती है, मेरे बच्चों की बुराई अपने बहन से करती है, यानी वो बच्चे की या बच्ची की खाला से। मैं पूछता हूँ क्या मिलेगा हमको? हमारी बच्चे की बुराई हमारे खानदान में करने की क्या जरूरत है? ये कब होगा मालूम? ये जब होगा जब आप अपने बच्चों को, बच्चे बच्ची को मासूम नहीं समझेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बात पर गौर कीजिए प्लीज। मैं स्पीकर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, वो काम उलमा का है। मैं कुछ फिक्रों के साथ आपके साथ एक डिस्कशन कर सकता हूँ, वही डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं जो हालात देखता हूँ आपके सामने रहा, बार बार वो चीज़ को ध्यान में रखिए। माँ बाप ये रखना कि बच्चों के अंदर समझ कम है, वो तो मालूम है, वो हर माँ बाप मानते हैं, उनको अकल कम है, उनको समझ कम है, हर माँ बाप बोलते हैं और हकीकत भी है। माँ बाप ये नहीं समझते कि बच्चे मासूम हैं। उनकी उम्र में जब हम थे, हमारे लिए ये खुराफात नहीं थे, ये बुराई नहीं थी, ये फसाद नहीं था, ये बेहयाई नहीं थी। हम उस उम्र से एक समझो आसानी से गुजर गए, लेकिन इस जमाने में हमारे बच्चों के ऊपर बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को आपको समझना है, समझ कर सब्र के साथ। बड़ा मादा जरूरत क्या पड़ रही है माँ बाप को? सबसे बड़ी जरूरत क्या पड़ रही है? सब्र की। क्यों बोले तो बच्चे ऐसे हरकतें करते थे कभी, हमें तो नहीं करना जिंदगी में, हमें ये सब काम नहीं करना, हमारे बच्चे करने को बेबस हो जाते हैं। माँ बाप बेबस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और उसके बाद बेसब्र होकर कुछ या तो बोल देते हैं तो कर देते हैं। नहीं, सब्र करो, ये तो मेरा और आपका काम। बच्चा की जिम्मेदारी है वो खुद समझना कि मैं अकल में कम हूँ, मैं समझ में कम हूँ, मेरे माँ बाप अकल में, समझ में, रहबरी में ज्यादा है, एनी डे ज्यादा है। और ये बात उनके दिल में आना बच्चों के कि माँ बाप से बढ़कर हमारी रहबरी कोई भी नहीं कर सकता, माँ बाप से अच्छा दोस्त हमारा कोई भी हो नहीं सकता। ये बात हमारे बच्चों के दिल में लाएंगे जहन में आप लोग बच्चे। Who is your best friend? Who has got more knowledge than you? समझदारी किसके अंदर है ज्यादा? मानते हैं नहीं? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्या करना? बात सुनना, फोन नहीं दिए तो लड़ना। बात सुनना, जब जितने वक्त में फोन देंगे उतने वक्त में देख कर दे देंगे वापस। ये बोलना, ये सब ये बोलना था कि फोन मत दो, फोन बिल्कुल मत दो। अब माँ बाप आपके बैठे हैं, आप बच्चे यहाँ पर हैं, मैं माँ बाप से बोल रहा हूँ कि 100% फोन मत दो। यू विल एग्री फॉर इट? ये हकीकत है, ये हकीकत है। एंड इस हकीकत को हमको समझना है। उसका मतलब ये नहीं कि फोन नहीं दे तो फ्रैंकली बोल रहे बच्चे, इसलिए भी बोल रहे हैं कि किसका आवाज आ रहा है मालूम होता नहीं आपको, इसलिए हिम्मत से बोल रहे हैं बच्चे। तो ये हकीकत है। तो हमें क्या करना पड़ता है? एक टाइम फ्रेम बनाना, ठीक है, ये टाइम से आप फोन देकर गेम्स देखो, देकर वापस दे लीजिए। उसका फोन लेकर अपने पास रखना है। उसके बाद बच्चे भी ये फरमा बरदार रहना, जब आप वादा कर ले रहे हैं, आप समझ कर बोल रहे हैं। आई टोल्ड यू कॉन्शियसली, कॉन्शियस का मतलब क्या? एहसास, व्हाट यू आर टॉकिंग, एहसास के साथ, व्हाट यू आर थिंकिंग, एहसास के साथ, जो आप जबान से बोल रहे हैं एहसास के साथ।
एहसास के साथ जो इंसान काम करता है वो कामयाब होता है. I asked you and very nicely you answered me. Yes, our parents have got more knowledge, our parents have got more knowledge, our parents have got more guidance, bravery. So, and ultimately we said that yes, we have to listen to our parents because they are our best friends. And the parents should understand that our children are our best friends. Our children have less understanding. Our children are being carried away with what is happening outside. बाहर जो चीजें हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे बच्चे और बच्चियां का माइंड मुंतशिर हो रहा है. और जब माइंड मुंतशिर होता है हमें क्या करना है, हमको ये समझना है कि ये बच्चे मासूम हैं, बाहर जाते हैं, वो देखते हैं, ये देखते हैं, वो फ्रेंड्स के दरमियान कुछ बात होती है, ब्रेक में बैठकर बच्चे बच्चियां बात करते हैं, ये सब होता है. ये होता है का मतलब इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है कि जो चाहे वो करे. बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है. और माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि जब वो कुछ ऐसा मालूम होता है, तो जब चीजें सामने आते हैं तो उसे अच्छे से रहबरी करना, उसे अच्छे से उनको बात कर कर कम्युनिकेट कर कर उनको समझा कर उनके साथ अज़ाइम करा. अज़ाइम करा. माँ बाप अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, याद रखिएगा. मैं अच्छा हूँ, मेरी बीवी अच्छी है, मेरा बच्चा कैसा खराब हो सकता है, मेरी बच्ची कैसा खराब हो सकती है, सवाल ही बता रहे. और बच्चे भी ये समझना मेरे माँ बाप इतने अच्छे माँ बाप है, इतनी मेहनत करते हैं मेरे वास्ते, तो मैं कैसा गलत हो सकता हूँ, मैं कैसा बुरा हो सकता हूँ, मैं कैसा गलत काम कर सकता हूँ. ये बच्चे और बच्चियों के जहन में आना. बच्चियां माँ का ताज है, माँ बाप का ताज है, याद रखो. माँ बाप का ताज है. बच्चियां somebody has बच्चे. Listen, I'll answer that. माशाल्लाह, I'll answer that. बच्चियां माँ बाप का ताज है. ताज का मकाम सर पर है, जमीन पर नहीं है. बच्चों की जिम्मेदारी है वो ताज की हिफाजत करना, ताज की कदर करना. याद रखो. ताज की कदर करना, हिफाजत करने का मतलब क्या? लड़कियों से चैटिंग करना. सी अंडरस्टैंड थिंग्स. I'm telling you. मैं बड़े हंसते हंसते बोल रहा हूँ. बच्चे समझो, बच्चे समझो. आप लोग अगर अच्छे हो गए, यानी ये बात समझो कैसी है. बॉयज बिकम गुड, बॉयज की समझ अच्छी हो गई, बॉयज अच्छे समझदार पाक नेक और समझ आ गया आप लोगों को, तो ऑटोमेटिकली बच्चियां की हिफाजत हो गई. बात कुछ नहीं. कोई लड़का आपका कुछ कहेगा, ये दुनिया है, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, आपके साथ भी है. बुरे अच्छे का मतलब क्या? बच्चा खराब नहीं है, बच्चे की रहबरी खराब हो गई है, बच्चे की रहबरी गलत हो गई है. जिसकी रहबरी गलत हो गई है वो आकर आपको कहेगा, कुछ गलत बोलेगा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या? तब का तो अच्छे से, अदब से, मोहब्बत से, प्यार से बच्चे को बोलना, नहीं, व्हाट यू आर टेलिंग इज रॉन्ग. ऐसा नहीं. हमें अच्छे माँ बाप के बच्चे, तब का तो अपने जबान से निकला, हमें अच्छे माँ बाप के बच्चे ये काम नहीं कर सकते. तुम भी मत करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी. यही चीज बच्चियों में. कोई आकर कुछ कहते हैं, चलो आज स्कूल के बाद हम लोग कहीं पार्टी में जाएंगे, तो तुम्हें बोलना हमें अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, हमारे माँ बाप से परमिशन लेकर हम जाएंगे. देखिए, जाइए आप, परमिशन लीजिए. कौन सा भी काम करो परमिशन के साथ करो. सुनो, listen, I'm going to end now.
वक्त हो गया है। पेरेंट्स से हमारा वादा था कि हम वक्त से स्टार्ट करेंगे और वक्त से ख़त्म कर देंगे। क्या करना ख़त्म करने वाला था? ऑडियो वीडियो भेजे थे 11:31 हो गए। इंशाल्लाह आई फिनिश सून। 5-7 मिनट। मैं बोल रहा था कि कौन सा भी काम करो माँ बाप की परमिशन के साथ करो। विदाउट दी परमिशन ऑफ द पेरेंट्स प्लीज डोंट डू इट। उतनी तो हिम्मत रखो कि माँ बाप का जाकर बोलो मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। देखो अभी तुम लोग बोले कि माँ बाप को ज़्यादा समझ है, माँ बाप को ज़्यादा अक्ल है, माँ बाप को ज़्यादा रहबरी हमारे माँ बाप ही कर सकते हैं, हमारे सच्चे दोस्त माँ बाप ही हो सकते हैं। कभी एक अच्छा दोस्त गलत रहबरी करेगा? कभी नहीं करेगा। तो do anything, girls and boys, without the permission of the knowledge of the parents. कोई चीज छपाओ मत। अगर हमारी तरबियत होना है, हम अच्छे बनना है, कल माँ बाप का नाम को रोशन करना याद रखें। दे शुड टेल। आज क्या बोलते हैं मानो? आज जो बोलते हैं आपका इंट्रोडक्शन में समझाता हूँ। आपका इंट्रोडक्शन क्या आज? ये अब्दुल रहमान के बेटे हैं, ये अब्दुल रहीम की बेटी है। आज का इंट्रोडक्शन आपको ये बनाना है, ये चैलेंज लेकर बनाना है। कल क्या बोलना मानो? ये फॉर माई सन फॉर एग्जाम्पल टुडे इफ दे इंट्रोड्यूस मी दिस फयाज सर का बेटे हाशिम। कल उन्होंने ये बनाना है, ये बनकर दिखाना है कि लोग कहें कि हाशिम के वालिद फयाज हैं। इतनी मेहनत करके ये मुकाम बच्चे और बच्चियां को पाना है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों की मदद करे, अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको गलत रहबरी करने वालों से बचाए। मैं ये भी कहता हूँ, आखिर में सुन लीजिए, लास्ट बात में मैं कहता आ रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, उसके माँ बाप बैठे हैं। अपने बच्चियों को खाला के घर भेजना, फूफू के घर भेजना, मामू के घर भेजना, छुट्टियां में वीकेंड में। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, आप अपने बच्चियों को अकेले मत भेजिए। ना तो मामू के साथ भेजिए, ना तो खाला के साथ भेजिए। मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप जाइए साथ में, सारा दिन रहना है, जाओ साथ में जाओ, घर में गुजारो। उसके बाद साथ बुला कर साथ बुला कर लेकर आओ। अकेले मत भेजो, 1 रोज भेजना, 2 रोज भेजना, ये सब छोड़ दो प्लीज। वो जमाना चले गया हमारे साथ जो होता था। हमारी वालिदा हम तुमको भेजते थे खाला के पास, हम 4-5 रोज जाकर रहकर आते थे। वो हालात चले गए। अब तो सगी खाला भी नहीं, सगी फूफू भी नहीं, सगी मामू भी नहीं। बहुत अच्छे लोग समझने लगे, तुम्हारी खाला भी बहुत अच्छे, फूफू भी बहुत अच्छे, मामू भी बहुत अच्छे, चाचा भी बहुत अच्छे, सब अच्छे लोग। अच्छे ही समझना है उनको, ताल्लुकात भी रखना है, रिश्तेदारी को कभी तोड़ना नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत करना है याद रखना। प्लीज वही काम करो, साथ जाओ। फाइनली आई थैंक ऑल द पेरेंट्स फॉर कमिंग। अल्लाह करे मैं जो बात बोल रहा हूँ सबसे पहले मेरे लिए बोला, नियत में वही मेरी तरबियत हो जाए। मैं कुछ चीज़ें सीखना है, मैं सीख जाऊँ। मेरे बच्चों में से अच्छा सलूक मैं करो, दोस्त बनाओ, मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छा सलूक करें। ये नियत से मैं बोल रहा था। मैं दुआ करता हूँ मुझे भी अल्लाह समझा दे, आपको भी समझा दे। और अल्लाह ताला ने जो हम लोग बैठकर मुज़ाकरा करें, जो फिक्र करें, ये बयान नहीं था, ये फिक्र की एक एहसास वाली बात थी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन एहसासात को, फिक्रों को हमारे बच्चों में, हमारे माँ बाप में, हमने वो फिक्रों को दिल और दिमाग में बेबस फरमा। जज़ाकल्लाहु खैर।
I request Mohammad Zia Hakim sir for the vote of thanks. Mashallah, those were words of wisdom. Now we understood why the school name is wisdom, because our founder has so many words of wisdom. So this is the time for conclusion. Every event has to be concluded. So we have to conclude this event. Before conclusion, we need to thank and appreciate the presence of each and everyone over here. Before that, I would like to start the thanking and appreciation to the mother of wisdom, Ammi Jaan. आपकी मौजूदगी हमारे लिए बेशक अल्लाह की रहमतों का सबब होगा आपकी मौजूदगी। बुजुर्गों की मौजूदगी से ही जो है सारी तकरीबात जो है अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है। तो जज़ाकल्लाहु खैर कसीर आमी जान। I would like to start appreciating and thanking our founder and CEO, Mr. Fayaz Sharif sir. You have spared your precious time for this occasion, and Alhamdulillah, the occasion has come to the conclusion with the balance of Deen and Dunya. This is the best showcase of Deen and Dunya. So Alhamdulillah, before starting this event, there were few parents who came early. We can say the first parent who came, and as a gesture of thanks and to motivate them that they came first, our school has come with a very beautiful gesture. I will request those parents and call their names. Please come on stage. To respect and honor mothers, we will call only mothers. From the girls, first mother, the girl is from 9th B and the mother of Umme Sara. Please come. Please come near the stage. Ammi Jaan will hand over the bouquet. MashaAllah. And one more mother here. She is the mother of Abdullah, 9th A. Abdullah. The mother of Abdullah, 9th A. I think she left. Who's the next? This is mother. दो अब्दुल्ला सर There are two Abdullah there, right? Yes. Who's mother Abdullah? Your mother came? Your mother has come? When did she come? Mother Abdullah.
Well, it seems that so many parents came on time. That's what is the confusion. It's good that so many parents came on time. Abdullah, please call your mother on stage, near the stage. Mashallah. And we hope in the upcoming events also the parents will definitely come and honor our invitations. So before thanking everyone, let's thank Almighty Allah for making this event successful and so mashallah. As I told you, the presence of Amijan is very honor for us. I request Fiyaz Sharif sir to honor the presence. Sir is honoring Amijan with the beautiful shot. Jazakallah khairan Amijan. So let's conclude this event by thanking Allah subhanahu wa ta'ala. And I would like to express my deepest and sincere gratitude to Mr. Fiyaz Sharif sir for gracing this occasion with his presence, and our authorities and our captains, Maulana Khamruddin Sahab and Maulana Masiullah Sahab, and Captain Meeran sir for gracing this occasion with their presence, and our teachers and our staff who made this event successful with their hard work and efforts. And special thanks to our students and the leaders who got the responsibilities today. We hope and we pray they do the duties very heartedly and bravely and sincerely. And all the students over here who are present and the parents, your presence, without your presence, this occasion was not at all complete. So we, on the behalf of all the Wisdom School, we really thank your we thank the parents, and yes, this occasion definitely there is a backbone which is consistently who is there in the planning and everything. The wife of our CEO, Salma Apam, we really thank her. And last but not least, thank you everyone, thank you teachers, and thank you all the students who made this occasion successful. Jazakallah khairan. Have a good day. Jazakallah khair. Request Masiullah Hazrat for dua. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह रहम के, करम के और आफियत के फैसले फरमा। अल्लाह आज की इस मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह जिन नेक मकासद के तहत हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, अल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुँचा। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों का ठंडक बना। अल्लाह शयातीन के एजेंट कदम कदम पर जाल बिछाए हुए हैं हमारे बच्चों को गुमराह करने के लिए, हमारे बच्चों को राय हक से हटाने के लिए। अल्लाह हमारे इन बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह चार दीवारी की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ पर पढ़ाने वाले असातिज़ा और टीचर्स की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन और सरपरस्तों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके जायज़ मकासद को पूरा फरमा। अल्लाह आज दुश्मन ताकतें हमारे बच्चों को हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तरह तरह के जाल बिछा रहे हैं। अल्लाह तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह इन तमाम हथकंडों से, तमाम जालों से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इनके अंदर शर्म व हया, अल्लाह तादम हयात बाकी रख। अल्लाह उस पर जमे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बच्चियों को हिजाब के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बच्चों को शर्म व हया के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मजलिस में मुख्तलिफ लोग हैं, अल्लाह हुफ़ाज़ भी हैं, उलमा भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो रातों को उठकर आपके सामने हाथ फैलाते हैं। अल्लाह उन लोगों की लाज रखते हुए हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम सब के नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा। अल्लाह जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा। अल्लाह ख़ानदान में जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, ऐ अल्लाह ता देर तक उनका साया हम पर बाक़ी रख। अल्लाह बिलख़ुसूस हमारे स्कूल के जनाब फयाज शरीफ साहब और उनके पूरे घराने की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन लोगों को सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके जायज़ मकासद को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो वालिदैन कर्ज़ों में डूबे हुए उनके गैब से इंतज़ामात फरमा। ऐ अल्लाह उनकी मुश्किलों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह उनकी मुश्किलों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह बच्चों को वालिदैन की आंखों का ठंडक बना। ऐ अल्लाह बच्चों को वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह बिलख़ुसूस हमारे विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन जनाब अब्दुल सुभान साहब जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह उनके अहले मोहतरमा की उम्र में बरकत अता फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह उनका साया ता देर तक विजडम पर बाक़ी रख। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं पर भी जो लोग भी दीन के नाम पर काम कर रहे हैं, अल्लाह सभी को हौसला अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, सभी को बेहतरीन जज्बा अता फरमा। ऐ अल्लाह मरते दम तक ईमान पर जमे रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallah khair. National anthem will be sung by Khalil and group. Request everyone to stand proud and quiet in respect for national anthems. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
बॉयज बैठे रहेंगे और जेंट्स हजरात की थोड़ी देर तशरीफ रखें, पीछे लेडीज जा रहे हैं।